Hello guys, welcome to the channel and let's begin with the programming series, basic programming series. Today's lecture is on palindrome. This is the fifth lecture. Let's continue with today's agenda. So this is our agenda. We will go with the definition part, then we will understand the logic, then we will go with the algorithm part, and next we will go with the programming languages where we will code this problem in C language, C++ language, and in Python language as well. So first of all, let's understand what is palindrome. By the way, this video is gonna be bilingual in the both languages, in Hindi and English as required. Okay, so let's continue. So what is palindrome, or what is a number? Is it a number? Is it a string, or what it is? So, for example, you have known with the some numbers like given in the screen, which is 121 or 12321 555 and 33. So what is the similarities between all these three are like, and all the four are like? You can read it from the forward as well as the backward, and you will get the same number or the same word like bob, tenet, tenet. So let's see with one of the example is 12321. So if you read this number from left to right, you will get 12321, which is 12,321. And if you will read this number again with right to left, you will get the same number 12321, which is again 12,321. So let's understand what's its definition. So the definition says a palindrome is a word, a number, phrase, or other sequence of characters which read the same backward as forward, such as madam, race car. They are also numeric palindromes, including date-time stamps using short digits and long digits as well. These are some examples, some very well-known examples like these dates, these timings, 11/11 or 2nd February 2020. So these are all so kind of famous palindromes. Okay, आपने इन सभी को कहीं ना कहीं देखा ही होगा, लाइक लकी नंबर, लकी डे, इसको इधर से पढ़ो उधर से पढ़ो बात बराबर है. So these are actually palindrome numbers. ठीक है, they are basically of two types. Basically there are more than two types, but we are going to discuss on only these two types, which is palindrome number and palindrome words. Palindrome word gonna be in integer data types, and the palindrome words gonna be in string data type or character array data type. Okay, string or character array. Let's continue. So the algorithm to check for a palindrome number. So first of all, let's understand what is a palindrome number. As we have discussed previous slide, so a number which can be equal to its reverse form is called a palindrome number, like 121 or 343. These are the numbers. So let's see the algorithm part. Okay, first we will go with the algorithm part, then we will get an example, and then again we will come and read all these algorithm parts so that for a better understanding. So first of all, we will get a number from the user. This is the first step. Second is to hold the number in a temporary variable. In this temporary variable, the functions or the applications we are gonna do on the number is gonna be done on the temporary variable. That is why we have stored a temporary variable. Okay, we are not going to change the original number. First of all, we get a number, then we will make its copy, and we will do the our process or our applications on that number only. Okay, and then we will compare the previous number or the original number with the operated number which we will going to operate, and the operation will be reverse. Okay, and we will compare both these. If the both are same, then we will consider that this is a palindrome, else it is not a palindrome. Okay, so सबसे पहले हम लोग इसको एग्जांपल को ब्रीफली समझ लेते हैं. एक बार एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं 12321. ठीक है, तो इसको स्टोर किया नंबर्स में 12321 और इसको रिवर्स किया. ठीक है, तो रिवर्स किया तो 12321 सेम रह गया. ठीक है, तो इसको पैलिंड्रोम कह देंगे. फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 12,345 को ले लेते हैं. ठीक है ना, इसको नंबर हमारा ओरिजिनल नंबर है 12345. अब इसको स्टोर किया और उसको रिवर्स किया, तो रिवर्स करने के बाद ये नंबर बन जाएगा 54321. ओके, और ये दोनों इक्वल नहीं है कंपेयर करने के बाद, तो एल्स वाला पार्ट चलेगा और नॉट पैलिंड्रोम प्रिंट हो जाएगा. सो आप इसको एक बार नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो. ओके, और यही सेम स्टेप्स हमने किए हैं अभी. सो अब सी और सी प्लस प्लस में हम इसका प्रोग्राम को एक बार रन करके या फिर इसको एक बार पढ़ लेते हैं. हाँ, और इसको लास्ट हम लोग रन कर लेंगे. ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है रिवर्स का, जो हमारा जो रिवर्स ऑपरेशन हम यूज़ करने वाले हैं अपने एक नंबर कॉपीड नंबर पे, इसके लिए जो वीडियो है मैंने अपने थर्ड लेक्चर में बनाया है रिवर्स नंबर वाला. आप उसको ज़रूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाल दूंगा.
plus. So let's continue. Okay, and so that's why I'm not going to discuss this reverse logic. Okay, so हम मेन पार्ट में सबसे डिस्कस करते, सबसे पहले मेन पार्ट में जाएंगे और दो इंटीजर्स ले लेंगे, एक n और एक temp को. n हमारा ओरिजिनल होगा, temp हमारा टेम्पररी होगा. स्कैनफ से हम लोग n में स्टोर कर लेंगे वैल्यू, फिर temp वेरिएबल जो होगा उसमें रिवर्स को कॉल करेंगे. ओके, यहाँ पे फंक्शन कॉल की हमने यूज़ किया है. ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा. तो ये temp वेरिएबल हमने बनाया है. ओके, और रिवर्स फंक्शन को कॉल किया है इसमें, और इसमें हमने पास किया हमारा वैल्यू जो है नंबर. ठीक है, तो ये वाला जो है ये इसको कॉल करेगा. ठीक है, और ये पूरा कोड ऊपर से नीचे तक चलेगा और ये रिटर्न कर देगा हमारा रिवर्स नंबर, जो कि रिवर्स हो जाएगा और ये स्टोर हो जाएगा टेम्प वेरिएबल में. ओके, लाइक हमने पास किया अगर 1 2 और 3, तो रिवर्स हो क्या आ जाएगा 3 2 1. कैसे होगा ये उस वाले वीडियो में देख लेना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है. तो चलो अब चेक करते हैं, कंडीशन चेक करें यहाँ से यहाँ तक. अगर टेम्प इक्वल टू n है तो पैलिंड्रोम, एल्स नॉट पैलिंड्रोम. अब पाइथन वाला कोड देख लेते हैं हम लोग. पाइथन में मैंने फंक्शन कॉल का यूज़ नहीं किया है, आप कर भी सकते हो. मैं इस कोड को सिंपल रखने के लिए और छोटा रखने के लिए ये वाला अप्रोच अप्लाई किया हूँ. इन द कोड में मैंने डाल दिया. ठीक है ना, रिवर्स में बस यही छोटा सा 3 स्टेप लगते हैं. ठीक है, 4 स्टेप, ये वाइल को अगर एक्सक्लूड कर देता हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले नम वेरिएबल लिया. ठीक है, इसमें हमने इनपुट लिया और इनपुट को टाइप कास्ट कर दिया इंटीजर में, क्योंकि इंट टाइप का नंबर होना चाहिए ऑब्वियसली. अब इसको कॉपी किया टेम्प में नम को और एक रिवर्स बनाया. इस ये जो हमारा रिवर्स है यही हमारा रिवर्स नंबर होगा. ठीक है, जो कि यहाँ पर आप इसको एक बार देख लेना, वो वीडियोस में है. फिर रिवर्स को कॉल करने के बाद टेम्प वेरिएबल में स्टोर हो गया वो, और टेम्प हमारा है और ये रिवर्स को हम लोग कंपेयर करेंगे. इक्वल हुआ पैलिंड्रोम होगा, नहीं इक्वल हुआ नॉट ए पैलिंड्रोम. ओके, जस्ट सेम एज सी, लॉजिक इज सेम, द सिंटैक्स आर जस्ट डिफरेंट. ओके, you can go with other approaches also, but this is the basic and the simplest approach. So मैंने ये वाला यूज़ किया है. algorithm to check the palindrome for string को चेक करने के लिए सबसे पहले वही स्टेप्स करेंगे, बट सबसे पहले इस बार क्या करते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद palindrome वाला इसको algorithm को पूरा से ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ेंगे. ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या करते हैं ना, एक फ्लैग वेरिएबल लेंगे और फ्लैग को एज ए वॉचमैन समझते हैं. ठीक है ना, वॉचमैन अगर 0 का मतलब वॉचमैन सोया हुआ है और 1 का मतलब वॉचमैन जाग गया है. 0 का मतलब वॉचमैन सोया हुआ मतलब आप फ्लैट के अंदर जा चुके हो. ठीक है, और अगर 1 जाग गया तो फ्लैट के अंदर नहीं जा पाओगे. फ्लैट के अंदर जाना मतलब पैलिंड्रोम है, फ्लैट के अंदर नहीं जाना मतलब पैलिंड्रोम नहीं है. ठीक है, तो एक बार देखते हैं. तो इसमें हम लोग इसका अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं पूरा रिवर्स करने का, वो एक अनदर अप्रोच है. ये अप्रोच है कि हम लूप को हाफ टाइम्स चलाएंगे, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसीलिए ये अप्रोच को मैंने यूज़ किया है. ठीक है, यहाँ लूप सिर्फ n/2 चलेगा इफ़ n इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको स्टोर करते हैं स्ट्रिंग को a b b a एज एग्जाम्पल ले लिया. इंडेक्स फॉर्म में इसको देख लिया 0 1 2 3 है, और इसको हम लोग चेक करते हैं लेफ्ट को और राइट को चेक करते हैं. ठीक है, साइमल्टेनियसली चेक करेंगे. ठीक है, लाइक 0 और 3, देन वी विल डिक्रीज दिस वन पार्ट, इसको डिक्रीज कर देंगे और इसको इंक्रीज कर देंगे. ठीक है, तो 0 3 चेक किया, फ्लैग की वैल्यू 0 है क्योंकि इक्वल है. अगेन विथ 1 एंड 3 चेक किया, फ्लैग की वैल्यू 0 है, तो मतलब अभी वॉचमैन सोया हुआ है, तो ठीक है तुम फ्लैट के अंदर जा. अब लूप के ख़त्म होने के बाद अगर फ्लैग की वैल्यू 0 ही रही तो तुम फ्लैट के अंदर जा सकते हो, मतलब इसको तुम पैलिंड्रोम कह सकते हो. ठीक है, एक और एग्जांपल सेम है. यहाँ पे हमने और लेंथ की स्ट्रिंग ली है ABCBA. ठीक है, A को A से कंपेयर किया, 0 को 1 से, फिर 1 को 3 से, फिर 2 को 2 से. ठीक है, और दोनों इक्वल रहा, सारा इक्वल था, तो फ्लैग की वैल्यू 0 ही रही. लूप खत्म हुआ, बाहर निकले और फ्लैग की वैल्यू चेक की, चेक करके पता चला कि फ्लैग की वैल्यू अभी भी 0 ही है, तो येस इट इज़ अ पैलिंड्रोम. ओके, अब एक ले लेते हैं एग्जांपल जो कि नंबर पैलिंड्रोम नहीं है, लाइक ABCTA. ओके, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है साफ साफ कि ये पैलिंड्रोम नहीं है, बट स्टिल हमारा लॉजिक इस पर कैसे वर्क करेगा. सबसे पहले ये फर्स्ट वाला को चेक करेगा लास्ट के साथ. ठीक है, और देखिएगा इक्वल है, फ्लैग की वैल्यू 0 ही रही, कोई बात नहीं है. फिर इंक्रीमेंट होगा यहाँ से ये, और यहाँ से ये डिक्रीमेंट होगा. इंडेक्स 1 और इंडेक्स 3 को सर्च करेगा, यहाँ देखेगा दीज आर नॉट इक्वल्स. ओके, सो इफ इट इज नॉट इक्वल तो अब वॉचमैन जाग गया, फ्लैग की वैल्यू 1 कर दिया, और अब आप तो भाई किसी भी हालत में लूप कितनी बार चला लो आप अंदर नहीं जा सकते हो. ठीक है, क्योंकि उसने आपको देख लिया अंदर जाते हुए. ठीक है, तो ये बाहर जाओ.
ठीक है। तो अब हम लूप खत्म होने के बाद बाहर चेक करेंगे, तो फ्लैग की वैल्यू 1 रही तो नॉट अ पैलिंड्रोम। ओके, एल्गोरिथम अब फिर से एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है गेट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर, होल्ड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन टेम्पररी वेरिएबल, ऑब्वियसली लेंथ लेंगे तो ही जाके पता चलेगा। ठीक है, रन द लूप हाफ द लेंथ। ठीक है, कंपेयर करेंगे ईच स्टार्ट और एंड को, और इफ बोथ द कैरेक्टर्स आर नॉट सेम देन प्रिंट नॉट पैलिंड्रोम, इफ सेम देन प्रिंट पैलिंड्रोम। ओके, फ्लैग की वैल्यू के यूज के साथ आप इसको नोट करना नोट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ आवर लॉजिक विल लुक लाइक। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात बस ये है। ठीक है, मैं इसको भी समझाऊंगा, बट ये समझ लो सबसे पहले फ्लैग वाला स्टेटमेंट, ये हमारा लूप फॉर हाफ टाइम्स चलेगा। हाफ टाइम्स क्यों चलेगा? क्योंकि इसको हम लोग हाफ टाइम ही प्ले कर रहे हैं, क्योंकि अब एक यहाँ से एक चीज़ है और एक यहाँ से है, और कहा जा रहा है कि ये और ये सेम है, तो भैया यहाँ से यहाँ तक क्यों चेक करूँ? यहाँ से हाफ चेक कर लेता हूँ, यहाँ से हाफ चेक कर लेता हूँ, पता चल जाएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कोड। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा वही हमारा पुराना एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा लेते हैं? टेनेट ले लेते हैं। TENET। ठीक है, टेनेट को ले लिया। ओके, तो अब क्या करें, सबसे पहले आई इक्वल्स टू जीरो पे, आई इक्वल्स टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो। ठीक है, आई इक्वल टू जीरो पे क्या आया भैया, ये स्ट्रिंग में डाले आई इक्वल टू जीरो तो टी आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जीरो नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ माइनस आई माइनस वन। तो लेंथ हमारा क्या है, लेंथ हमारा है 5, 5 माइनस जीरो, आई की वैल्यू जीरो है, माइनस वन 4। ओके, सो फोर्थ इंडेक्स चेक करेंगे। ठीक है, तो जीरोथ और फोर्थ इंडेक्स चेक करो, तो ये है हमारा जीरोथ इंडेक्स, ये है हमारा वन इंडेक्स, ये है हमारा 2 3 4। यस, ये टी और ये टी इक्वल है। ठीक है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ नॉट इक्वल देन इंटर इन इफ, बट इट दे आर इक्वल सो इट विल नॉट इंटर इन द इफ पार्ट। आई की वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, आप इसको मैनुअली अपने कॉपी पे करके देखना। इसकी वैल्यू करते हैं 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, और इसमें भी ये इक्वल है, इसमें भी इक्वल है और इसमें भी इक्वल है, लाइक ई ई एंड एक नंबर खुद के इक्वल तो होता ही है। ठीक है, एन। ओके, और तो इससे ये पता चला कि ये वाला स्टेटमेंट कभी ट्रू नहीं हुआ है, तो इफ वाला पार्ट में कभी इंटर नहीं किया, इफ वाला पार्ट में कभी इंटर नहीं किया तो फ्लैग की वैल्यू कभी जीरो के अलावा कुछ हुई ही नहीं, और अगर जीरो के अलावा कुछ हुई नहीं तो क्या प्रिंट होगा, इट्स अ पैलिंड्रोम। डन। सी प्लस प्लस में सेम प्रोग्राम, बस सिंटैक्स है। ठीक है, ये हमारा लॉजिक है, बेसिक लॉजिक यहाँ से, और ये हमारा चेक फाइल है। ओके, ये हमारा इनपुट हमने लिया है, इनपुट लेने की तरीका ये रूल्स है। ठीक है, और एवरीथिंग इज सेम, सेम फॉर पाइथन। पाइथन में बस एक चीज़ खासियत है, इसमें हमारे पास एक वैल्यू है प्री डिफाइंड स्ट्रिंग का। ठीक है ना, कोलन कोलन माइनस वन डायरेक्ट रिवर्स कर देता है। ठीक है ना, डायरेक्ट रिवर्स, तो बस इसका यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा बस लिखने में वो क्या बोलते हैं इसको, सहूलियत है। ठीक है, एल्स आप इसको हमारे पुराने वाले लॉजिक से भी कर सकते हो, सेम होगा, बस यहाँ पे क्या लिखना कम पड़ेगा। सो मैंने ये वाला कोड किया, आप ये वाला कोड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लॉजिक, और ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, जो आपका मन वो यूज़ करो। So guys, if you enjoyed the video, do like, share and subscribe. And for more guidance, you can mail me at the given mail ID. And stay at home, stay safe. Thank you.